matters dated 23/2/2023 passed by our learned brothers Yahya Afridi and Abdullah J and dismissed the present constitution petitions and dropped the suo motu proceedings. یہ بات ویسے عدالت میں بھی جب آنریبل چیف جسٹس نے آرڈر پڑھا تھا تو سنائی گئی تھی، لیکن جو فٹ نوٹ ہے وہ عدالت میں نہیں پڑھا گیا، وہ میں پڑھنا چاہتا ہوں، وہ بڑا معنی خیز ہے. فٹ نوٹ یہ کہتا ہے initially a 9-member bench heard this matter. The aforementioned 2 honorable judges decided the matter by dismissing the said petitions. Later on, 2 other honorable judges disassociated themselves from the bench for personal reasons, and as the 2 aforementioned judges had dismissed the matter, the bench was reconstituted into a 5-member bench by order dated 27/2/2023. The decisions of the aforementioned 2 honorable judges dated 27/2/2023 form part of the record of the case. That means کہ اس کیس کے ریکارڈ میں 5 نہیں 7 معزز جج صاحبان کے فیصلے موجود ہیں. اس میں سے 2 معزز جج صاحبان نے 23/2 کو ان پٹیشنز کو ڈسمس کیا. آج 2 معزز جج صاحبان نے پھر پٹیشن کو ڈسمس کیا، تو 4 معزز جج صاحبان نے پٹیشن کو ڈسمس کیا، 3 معزز جج صاحبان نے پٹیشن کو مینٹینیبل قرار دیا. یہ صورتحال ہے اینڈ دس از دا سچویشن. اب آگے سر اے ٹی صاحب انہوں نے 2 ججز نے یہ لکھا بھی ہے سر 2 ججز نے سوال کا جواب دے دوں. میرے خیال میں اس میں ریویو والی بات نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے کہ فیصلہ جب بہت واضح ہو اور اس میں ابہام نہ ہو. یہ ہار جیت والا ویسے یہ کیس نہیں تھا کہ کسی کی اہلیت اور نااہلیت کا کیس ہے، کسی کی کوالیفیکیشن ڈسکوالیفیکیشن ڈسکس ہو رہی ہے. یہ ایک آئینی نقطہ آیا اور اس آئینی نقطے کی مینٹینیبلٹی کے اوپر پہلے بحث چھڑی، اور اس بحث کے نتیجے میں 2 باتیں سامنے آئیں کہ جن 2 معزز جج صاحبان نے اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر دیا تھا اس معاملے کو ریفر کرتے ہوئے، ان کے اوپر اعتراض اٹھایا گیا کچھ جماعتوں کے وکلاء کی طرف سے اور پاکستان بار کونسل کی طرف سے جو وکلاء تنظیم ہے. ان 2 جج صاحبان نے الٹیمیٹلی رضا کرانہ طور پہ اپنے آپ کو بینچ سے الگ کر دیا، ریڈیوس کر دیا. میں سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ فیصلہ صائب تھا، کیونکہ کہتے ہیں کہ انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے، اور اس کی کوئی بیک گراؤنڈ بھی اور ہسٹری بھی تھی ان 2 جج صاحبان کے حوالے سے. اب 7 جج صاحبان میں سے 2 جج صاحبان 23 تاریخ کو اپنا فیصلہ دے کے دستخط کر چکے. انہوں نے کہا کہ ہم ان پٹیشن کو مینٹینیبلٹی کی بنیاد پہ خارج کرتے ہیں، یہ قابل سماعت نہیں ہے. سو موٹو کا اختیار بھی اس کیس میں اس لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے کہ معاملہ ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے، اور 184(3) کی جو سپریم کورٹ کی عدالت عظمیٰ کی پاورز ہیں ان کے بارے میں انہوں نے یہ رائے دی. آج جب فیصلہ آیا 5 رکنی بینچ کا، چیف جسٹس صاحب نے اس عرصے میں یہ مناسب سمجھا کہ وہ 2 جج صاحبان جو کہ اپنی فائنل اوپینین دے چکے ہیں وہ فردر اس معاملے میں نہیں بیٹھنا ان کا مناسب. سو لہٰذا انہوں نے جو دیگر 5 جج صاحبان تھے ان کو بینچ کا حصہ بنایا اور ان کے سامنے کیس آتی ہوا. آج کے فیصلے میں 3 جج صاحبان نے کہا کہ یہ پروسیڈنگس مینٹینیبل ہیں، اور اس میں انہوں نے مزید 1-2 چیزیں لکھی جو اٹارنی جنرل صاحب نے آرگیو کل کی تھی کہ ایک تو جو آئین کا آرٹیکل 254 ہے جو کہ یہ کہتا ہے کہ اگر آئین کے تحت کسی چیز کو ایک مقررہ وقت میں ہونا ہے اور وہ چیز اس مقررہ وقت میں نہیں ہو سکی، وہ ایکشن نہیں ہوا، تو اس وجہ سے وہ غیر آئینی نہیں ہوگا کہ اس ٹائم فریم میں، یعنی کہ انتخابات 90 دن میں نہیں ہوئے. آج انہوں نے گراؤنڈ ریالٹیز دیکھتے ہوئے ان 3 جج صاحبان نے بھی کہا کہ گورنر اور ای سی پی یا صدر اور ای سی پی مشاورت سے ڈیٹ دے اور کوشش کرے کہ وہ 90 روز تو اب گزر جائے گی، وہ جو اوریجنل 90 روز تھے، یعنی کہ وہ جو 15 اپریل کے اندر تھے، لیکن ارلیسٹ پاسبل جہاں پہ انتخابات ہو سکتے ہیں مشاورت کے بعد کوشش کریں. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لوگوں کی بھی یہ رائے ہے. ہم بھی سمجھتے ہیں کہ اگر حالات سازگار ہوں، اگر انتخابات انسانی جانوں سے زیادہ قیمتی ہیں، یا اگر ان کی حالات اجازت دے رہے ہیں تو 30 40 50 دن میں ہوں، اگر وہ 80 90 دن میں ہونے ہیں تو یہ ڈسکریشن بھی آئین دیتا ہے الیکشن کمیشن اور باقی اسٹیک ہولڈرز کو. اس بحث کو چھوڑ دیتے ہیں. آج کی بہت کلیئر ججمنٹ ہے. 2 معزز جج صاحبان نے کہا کہ ہم ایگری کرتے ہیں جو فیصلہ 23 فروری کو 2 دیگر اراکین جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب
और जस्टिस अतब बिरला साहब ने तहरीर की है अपने नोट्स कि ये पिटीशन मेंटेनेबल नहीं है, ये काबिल समाज नहीं है। और साथ उन्होंने कहा कि हम ये भी समझते हैं कि वो जो 2 जज साहिबान के फैसला जात हैं वो आज के इस फाइनल ऑर्डर का हिस्सा हैं। मेरे ख्याल में इसके बाद ना रिव्यू की ज़रूरत है, ना फर्दर तशरीह की ज़रूरत है। मैंने अपना ज़ाती मौक़िफ़ दिया था। अब मैं समझता हूँ कि अटॉर्नी जनरल साहब की राय आने के बाद और इस ऑर्डर को पढ़ने के बाद हमारा मौक़िफ़ ये है कि ये पिटीशन 4-3 से मुस्तरद हो गई हैं। 4 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान लिखते हैं कि ये काबिल समाअत नहीं है। अब ये फैसला कानून और आइन के मुताबिक हाई कोर्ट में जो पेंडिंग प्रोसीडिंग्स है उनमें हो जाए। सर आप बड़े सीजन लॉयर हैं, आप ये बताएं कि चीफ जस्टिस ने आके ऑपरेटिव पार्ट पढ़ा और हमेशा ऑपरेटिव पार्ट ही ऑर्डर ऑफ द डे कंसिडर किया जाता है। उसमें अगर वो अनाउंस कर रहे हैं 3-2 और ये जो आपने बताया ये फुट नोट में लिखा हुआ है, तो एम्बिग्यूटी इटसेल्फ यहाँ पे है कि कौन सा फैसला माना जाए। आप 4-3 कह रहे हैं, चीफ जस्टिस ने 3-2 से फैसला दिया है। देखिए, एक बात तो तयशुदा है कि ये 7 रुकनी बेंच जो है, 7 जज साहिबान जो हैं वो बेंच का हिस्सा थे। 2 जज साहिबान 9 में से रज़ाकाराना तौर पे रिक्यूज़ कर गए थे। 7 में से 2 जज जो आज बैठे हुए थे 5 रुकनी में, उन्होंने कहा कि हम अपने जो ब्रदर सीनियर है अर्लियर के ये पिटीशंस मेंटेनेबल नहीं है, हम इसे नहीं करते हैं। और उनका वो जो 23 तारीख का हुक्म है दैट इज़ पार्ट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। मतलब ये है कि उन्होंने उसको एंडोर्स करते हुए सर चीफ जस्टिस ने 4-3 क्यों नहीं अनाउंस किया, चीफ जस्टिस ने 3-2 क्यों अनाउंस किया? वो आज का फैसला था। मेरे ख्याल में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें अभी मज़ीद शायद डिबेट हो, लेकिन कानून में कुछ चीज़ें सर इसकी तशरीह के लिए आप फाइल करेंगे रिव्यू? मेरी नज़र में तशरीह तलब मामला नहीं है, रिव्यू की ज़रूरत ही नहीं है सर। अगर इससे किसी को इख्तलाफ है, कल को कोई सिचुएशन आई तो जिसको इससे इस तशरीह से इख्तलाफ हुआ वो जाके तशरीह करा लेगी। मेरी नज़र साहब जो आप 4 दिन की रेशो बता रहे हैं ये है, तो 4 का मतलब ये है कि आप हाई कोर्ट जो फैसला करेंगे वो 3 दिन के अंदर हाई कोर्ट को फैसला करना पड़ेगा। और उन हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ क्या फिर आप आएंगे? क्योंकि अब तो अब देखें 3 जज साहिबान जो कहते हैं सदर का पंजाब में है, सूबेदार में और इधर केपी गवर्नर का है, और दूसरा केपी गवर्नर के हवाले से क्या उन्होंने ब्रीच ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक तो अब मैं बड़े अदब से अर्ज़ करूँगा कि सबसे ज़्यादा जो ब्रीच ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की है वो सदर मुमलिकत ने माज़रत से की है, जिन्होंने एक फ़ैसला करके कौम के और फिर उसे वापस लिया। और उनके वकील साहब ने आला ज़ल्फ़ी का मुज़ाहरा करते हुए अदालत में कहा कि मेरे मुवक्किल जिनकी मैं नुमाइंदगी कर रहा हूँ उन्होंने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया। तो ये बात भी ज़रूर आनी चाहिए कि आया सदर मुमलिकत आइनी अहदा रखते हुए इन सारी चीज़ों से उन्हें मुबर्रा होकर बिल्कुल आइन के मुताबिक फैसले करने चाहिए या पार्टी वर्कर के तौर पर करने चाहिए। मेरे लिए ये बात बड़ी तकलीफ दे है पाकिस्तान के शहरी की हैसियत से, कानून के तालिब इल्म की हैसियत से, कि सदर मुमलिकत जिन्हें आइन पाकिस्तान एक बहुत बड़े मनसब पे फाइज करते हैं, उनका बड़ा किरदार है इसमें, वो इस तरह की बातें करें जो कि उनके मनसब के इख्तियारात में नहीं आती। ये एक अलग बहस होगी। आपने कहा कि हाई कोर्ट, देखिए अभी ये फैसला आ गया है, अब हाई कोर्ट में दरखास्तें खारिज नहीं हुई अभी तक। दोनों हाई कोर्ट में पेंडिंग है। पेशावर हाई कोर्ट में मामला ज़ेर तनकीद है, लाहौर हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील मौजूद है। इसकी तशरीह उन दोनों हाई कोर्ट में भी हो सकती है। तो उनकी तशरीह तो आप मुतासिर नहीं होगी। 3 फाजिल जज साहिबान है सुप्रीम कोर्ट के, तो आप नहीं समझते कि वो प्रेजुडिस हो गई है? 4 फाजिल जज साहिबान भी ने कहा है कि आप इसका फैसला करें। अच्छा सर, आपका मौक़िफ़ ये है, सर आपका मौक़िफ़ ये है, हुकूमत इलेक्शन डेट नहीं दे रही, हुकूमत इलेक्शन डेट नहीं दे रही है, आप इलेक्शन से भाग क्यों रहे हैं? बिल्कुल नहीं। अच्छा, मैं ये बात भी वाज़ेह कर दूँ, कल भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और JUIF के मुखला साहिबान अदालत में मौजूद थे। ये बात हम ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि कोई इलेक्शन से नहीं भाग रहा। हमारा सिर्फ ये कहना है कि इंतखाबात की तारीख और इंतखाबात के इनकाद इस मुल्क में हमेशा आइन कानून के मुताबिक होते रहे हैं और तारीखों में रद्द-बदल होता रहे। ये पहली दफ़ा नहीं होगी कि तारीखों में रद्द-बदल हो। हमारे वकील साहब ने एक मौक़िफ़ पेश किया, ये मुकदमा मैं कौम के सामने रखता हूँ, कौम खुद डिसाइड करे। इजाज़त देगी? अगर आप इजाज़त दें तो मैं बोलूँ। इतनी बात उन्होंने कही कि 35 अरब रुपए के खर्च से डिजिटल
मरदम शुमारी हो रही है जो कि आज शुरू हो गई है और उसका रिजल्ट जो है वो 30 अप्रैल को दिया जाएगा। 5 साल से ये बहस चल रही है कि जो पिछली मरदम शुमारी है वो दुरुस्त नहीं थी, उसमें तहफ़्फ़ुज़ात है बहुत से सेक्टर्स की सोसाइटी। जी, तो आपने सुना वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल को, जिनका कहना यह है कि जो 27 मार्च का फ़ैसला है, 27 फरवरी का फ़ैसला है, वो भी इस फैसले का हिस्सा है, जिसमें 2 जजेज़ ने करार दिया था कि दरख्वास्तें मेंटेनेबल नहीं हैं। और अब इस आज के फ़ैसले में भी 2 जजेज़ ने ये जुमला लिखा है कि हम अपने 2 साथी जजों के इस फैसले से इत्तफाक करते हैं कि दरख्वास्तें काबिल समात नहीं हैं और उसे डिसमिस किया जाता है और खुद नोटिस ख़त्म किया जाता है। जबकि हुकूमत का ये भी मौक़िफ़ है कि वो इलेक्शन से फ़रार नहीं हासिल कर रहे, बल्कि हालात और वाक़यात की वजह से तारीख़ में रद्द-ओ-बदल चाहते हैं। मरदमशुमारी शुरू हो चुकी है, मरदमशुमारी के बगैर अगर ये इलेक्शन कराए गए तो सूदमंद नहीं होंगे। नाज़रीन, क्या आगे चल के सूरत हाल होती है, मैंने अपने पहले यानी 26 फरवरी के व्लॉग में ये बता दिया था कि फ़ैसला ऐसा होगा कि सब खुश हो जाएंगे और PTI के हाथ कुछ नहीं आएगा। अभी फ़िलहाल PTI जश्न मना रही है, लेकिन PTI को भी मालूम है कि इलेक्शन नहीं होने जा रहे। नाज़रीन, जो भी सूरत हाल हुई उससे भी आपको आगाह करेंगे। देखते रहिए रोशन पाकिस्तान न्यूज़ चैनल, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।